કમલેશભાઈ નો એવો ફોન આવ્યો. અચ્છા, ના કઈ વાંધો. કેમ છો સાહેબ? બિલકુલ આનંદમાં. સંભળાય છે ને? યસ યસ. બસ તારે શું છે નવા જૂની? બધા આવે ત્યાં સુધી આપણે વાતો કરીએ. મયુરભાઈ છે, મયુરભાઈ તમારે ત્યાં ગાંધીનગરમાં જ છે? બિલકુલ બરાબર છે. હા, ડોક્ટર મયુરભાઈ ફેમસ છે. હું બધાને ઓળખું છું. ના, બિપિન કાકા સાથે જુદો સંબંધ છે. એ મારા કાકાના મિત્ર છે, કીર્તિભાઈ જોશીના. આજે બધા નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ થોડોક છે. 3 જણના મને ફોન આવી ગયા પોરબંદર થી. કમલેશભાઈ જોડાવાના હતા પણ ત્યાં બપોરથી નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે. ત્યાં 2 જણના ફોન આવ્યા. નેટવર્ક નો થોડો પ્રોબ્લેમ છે ત્યાં. મયુરભાઈ, મેં અને સાહેબે બહુ સાથે કામ કર્યું છે એનજીઓ માટે ખાસ. અરે વાહ. એનજીઓ કોઓર્ડિનેશન ડિપાર્ટમેન્ટના ડાયરેક્ટર હતા અને એમના ફૂલ ટેન્યુઅર દરમિયાન અમે બે સાથે કામ કર્યું છે. મને ખ્યાલ છે ત્યાં હતા. પછી તો છેલ્લે અહીંયા યુનિવર્સિટીમાં બી હતા ને? હા, આઈઆઈટી માં. ભરતભાઈ, આઈ એમ ઓડિબલ? યસ યસ યસ. ઓકે, જય હિન્દ. તમને ઓળખાણ પડી કે ના પડી? બીજું શું સાહેબ, ઘરે બધા મજામાં? સાહેબ બિલકુલ બિલકુલ બધા મજામાં. મયુરભાઈ, તમારી તબિયત કેમ છે? મારી તબિયત બેટર પહેલા કરતા અત્યારે. અત્યારે શું છે? હા, ચાલતો ફિઝિયોથેરાપી ચાલુ બધું ભેગું અત્યારે. હા, ફિઝિયોથેરાપી 2 ટાઈમ આવે છે અત્યારે, એટલે સારું છે અત્યારે. આપણે ચાલુ કરીએ. જેટલી આવે હશે મિત્રો સાથે, બરાબર? હા. तो नहीं दिखा मुझे ना. આપણી સાથે ભટ્ટ સાહેબ, ઇન્દ્ર ભટ્ટ સાહેબ આપણી સાથે ઇન્દ્રવર્ધન બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ જોડાયા છે. એ પબ્લિક ટ્રસ્ટ એસોસિએશન નું આખું એમનું માળખું છે
અને સારી રીતે બધાની સાથે સહયોગથી કામ કરે છે. हमारे परिवार में इस 10 करोड़ के खून जिसकी को लेकर समझो महाभारत छिड़ गई। ये तो आजकल लगभग हर परिवार की कहानी है हमारे हर परिवार में ये जमीन. Let us start. Our today's subject is role of NGO in coming economy slowdown. Those who are newer to this meeting, let me explain our organization. Mr. Ajay C. Barad was going to take this particular introductory session, but he is not here because of a network issue. BGTPN is stand for Business Growth Training or Business Growth Techniques. This is our organization. We meet every Saturday, and globally we have connections in 14 countries at present. Our main purpose is to meet each other, to gain knowledge, to network with members, sharing each other's references, doing business together, and educate about each other's businesses, and help each other for referencing. Let me introduce today's panelist. Bipin Bhai Bhatt Saheb, he is a retired government officer, and he is ex-director of NGO coordination department. He is a very special department only in Gujarat state, and मेरा ये प्रिविलेज रहा है कि मैंने पूरे उनके टेन्योर के दौरान उनके साथ काम किया है इस डिपार्टमेंट में. Kamlesh Bhai Khokhri is from Porbandar. He is not here because of a network issue. He is also a very good philanthropist. Dr. Mayur Joshi, he is managing trustee of Udgam Charitable Trust, and yes, doing very good activities across the country. He has good relations with major NGOs of all over India. Dr. Meena Shah and Dr. Twinkle Patel is not here at present. Both are having their good NGOs, Namaste Life Foundation and Motherhood Foundation. Milind Bhai Shah is running Being Patient Foundation, and he is working for burns related cases, burns के जो दर्दी होते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, and he is also doing very good work. आज का जो मेन सब्जेक्ट है रोल ऑफ एनजीओस आफ्टर कोरोना और इन कमिंग इकोनॉमी स्लो डाउन. इकोनॉमी स्लो डाउन तो जैसे मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि वो तो आने ही वाला है, और मैं तो वैसे सितंबर 2019 से कह रहा हूँ कि ये इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है. ये जो कोरोना है उसने तो सिर्फ उसमें थोड़ा ज्यादा जलाने का काम किया है, तो इकोनॉमी और भी डाउन होने वाली है. तो उसमें हमारे एनजीओ का क्या रोल हो सकता है? सरकार जो अभी कर रही है वो तो कर ही रही है, उसमें तो हमको सिर्फ साथ देना है. थोड़ा बहुत हम खाना खिलाते हैं लोगों को, जाके कुछ दे के आते हैं, उससे कोई जो मेन काम है वो सरकार अभी अच्छी तरीके से कर रही है, बेटर देन अदर कंट्रीज इवन. लेकिन बाद में जो होने वाला है, इकोनॉमी टूटने वाली है, उसके बाद हमारा एनजीओ का भी काम शुरू होता है. जैसे ऑल इंडस्ट्री का काम शुरू होता है, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री विल वर्क समथिंग और अदर थिंग टुगेदर. तो उसके बाद एनजीओ क्या करेंगे? एक थोड़ा सा मैं दूसरी बात साथ में कर लेता हूँ कि हम मंडे से एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं. हम एक फॉर्म डालेंगे हमारी सब वेबसाइट पे और आप सबको दिया जाएगा
उसमें हम एनजीओ क्या कर सकते हैं, सिमिलरली एमएसएमई और स्टार्टअप भी क्या कर सकते हैं, वो अपने आप उनका एक पूरा सर्वे और उसका गवर्नमेंट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो हम हमारे जो बीजेटीपीएन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम गवर्नमेंट को उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे और जितना हो सके उतना एनजीओ को और स्टार्टअप्स और एमएसएमई को हम सहायता करने का ट्राई करेंगे। सीएसआर मिलने वाला नहीं है क्योंकि सीएसआर जो कंपनीज है वो खुद घाटे में है, तो सीएसआर भी इस बार घाटे में जाने वाला है। जो कंपनियां अपने आप से खुद काम कर रही है वो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी एनजीओ को सीएसआर के लिए अभी सोचना ही नहीं चाहिए किस तरीके से और फंडिंग कहाँ से आना चाहिए और किस तरीके से ये इकोनॉमी स्लो डाउन में आगे बढ़ना चाहिए। आई विल हैंड ओवर टू आवर लर्नेड पैनलिस्ट भट्ट साहब, प्लीज। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में बात कर सकते हैं तो ठीक है। बात ये है कि एनजीओ जैसे बोला गया, बिन सरकारी मतलब शैक्षिक, तो जो भी काम एनजीओ के थ्रू करना चाहे उसमें सरकार की कम से कम दखल हो या बिल्कुल दखल ना हो, तभी वो काम कर पाए। सही है। मैंने तो सेवा से लेकर बहुत सारी एनजीओ के साथ काम किया है। अभी मैं थोड़े अंश पे बीएपीएस और वीएसएसएम के साथ काम भी कर रहा हूँ। इट इज ऑलमोस्ट ऑनररी। मैंने कभी कहीं से 1 रुपया कंसल्टेंसी चार्ज आज तक नहीं लिया है। तो ये अगर ऑन देयर ओन वो अगर काम करना चाहे तो रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट में वो बढ़िया काम कर सकती है, उसको बूस्टअप के लिए भी काम कर सकती है। जैसे अगर देखा जाए तो ध्रुवा बायोफेयर दक्षिण गुजरात में है, तो वो तो शुरू हुई थी कहीं और, हमारे यहाँ साउथ गुजरात में बढ़िया काम कर रही है 3 डिस्ट्रिक्ट में। और उनका पूरा इसलिए जाता है कि वो लोग प्रोडक्शन में है, उनके साथ कम से कम 16,000 से ज्यादा मैन पावर जुड़ा हुआ है और उनका जो टोटल टर्नओवर है उससे अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम है। सबसे ज्यादा कॉस्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, और उसमें प्रॉफिट भी होता है क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट का नहीं है, पर ये इन्होंने किया है। सेवा ने भी बड़े पैमाने पे काम करके दिखाया, आजीविका में भी काम किया है और सारी एनजीओ काम भी कर रही है। पर अगर ये जो स्लो डाउन ज्यादा चलेगा तो उसमें एनजीओ को छोटे छोटे पैमाने पर प्रोजेक्ट देकर काम उनके साथ किया जा सकता है। सरकार फंड दे भी सकती है या ऑन देयर ओन भी हो सकता है, सीएसआर में भी कर सकते हैं। पर एक बात है, अगर एनजीओ 1/3 पैसा खुद का निकालेगी, अगर एनजीओ 1/3 से ज्यादा सरकार से पैसा नहीं लेगी, अगर एनजीओ 1/3 अमाउंट बेनिफिशियरी के पास से कलेक्ट करके काम करेगी, तो मैं समझता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। Great. और एक सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि छोटे पैमाने पर जहाँ जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ मैन पावर अवेलेबल है, जहाँ कुछ हो सकता है उसको लेके काम भी किया जाए। और अभी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें एनजीओ नहीं है, एक क्षेत्र है मैं समझता हूँ मैन पावर प्रोक्योरमेंट का। अभी एजेंसीज काम कर रही है, अभी बड़े बड़े लोग मैदान में आ गए हैं, कुछ लोग 3,000 से 5,000 का मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैन प्रोवाइड करने की जो चीज है ना, वो एनजीओ थ्रू हो सकती है। तो क्या है कि अगर उनको वापस भेजना है, उनको ले जाना है, उनकी ट्रीटमेंट करनी है, उनका रजिस्ट्रेशन करना है, तो भी वो ठीक से होगा और अच्छा भी होगा। ये प्राइमरी में बात करता हूँ, बाकी आगे बात करते रहेंगे। या मयूर भाई। हाँ जी। मैं यहाँ पे भट्ट साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि एनजीओ को अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन पॉलिसी नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेजर एनजीओ के पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन पॉलिसी जैसी कुछ चीजें होती नहीं है। तो प्राइमरीली अब एनजीओ को पहले अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पॉलिसीज बनानी पड़ेगी।
रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, सिर्फ कैश की बात ना करते, इन काइंड भी कहाँ से कैसा किस तरह का, उसमें मैं बहुत अच्छा मैं कहता हूँ कि BAPS का बोचासनवासी अक्षय पुरुषोत्तम संस्थान है, उनका मॉडल मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लोग जहाँ से जो मिलता है छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं करके, वो एक बड़ी चीजों पे टारगेट कभी नहीं करते। और मैं भट्ट साहब की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि आजीविका नाम टाइप के प्रोजेक्ट्स हमको चलाने पड़ेंगे। कारण उसका यह है कि गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पे शायद मुझे लग रहा है कि आज वापस जाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मजदूर वापस जा रहे हैं उनके लिए वहां पे ही लोकल काम ढूंढना भी इतना ही जरूरी है जितना वहां पे से यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जो अर्बन में फैक्ट्रीज बंद होगी, तो यहाँ का जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन है या जो अनुभव है, वो जाके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो शायद जाके वो एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक क्लस्टर डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू करें कि जो जैसे हीरा व्यापारी है तो भावनगर के आसपास के अगल बगल के क्षेत्र के आते हैं, तो पूरा एक सेंटर सूरत ना बनाते हुए एज ए एग्जाम्पल हम लोग भावनगर डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उस तरह के अलग अलग व्यवसाय है जिसको हम छोटे पैमाने पे चालू करा सकते हैं। उसके लिए एनजीओ को सरकार के साथ जैसे भट्ट साहब ने बताया कि मिलके काम करना पड़ेगा। एमएसएमई डिपार्टमेंट की है या टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की, बहुत सारे डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट की क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स है, तो उसको स्कीम्स के साथ आइडेंटिफाई करके और साथ में जहाँ लोकल CSR या लोकल डोनर्स हैं उसका भी जोड़ते हुए लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे के साथ में जोड़ के काम करें, उसके लिए हमें टारगेट करना पड़ेगा। और जो मैन पावर एजेंसीज की बात करी भट्ट साहब ने, मैं जैसे भट्ट साहब बात कर रहे थे तो एक बहुत, मैं कल ही बात कर रहा था किसी के साथ कि दिल्ली में है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है वो किसी न किसी एजेंसीज के माध्यम से आते हैं, जो गुजरात में मेरे ख्याल से कहीं नहीं है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है जो किसी न किसी एजेंसीज के माध्यम से आते हैं। एक बहुत छोटी चीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोग एनजीओज हैं वो आइडेंटिफाई करके काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही जहाँ पे हम लोगों को बात करने की जरूरत है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से आप अभी भी आजकल अखबार वगैरह में पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ गए हैं, लोगों के मेंटल इश्यूज बढ़ गए हैं, पोर्नोग्राफी की इश्यूज बढ़ गए हैं। तो इस सारे पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी काम करने की बहुत जरूरत है। तो एनजीओ को अपने आप को उसके ऊपर भी, जैसे मिलिंद भाई काम कर रहे हैं, उसका एक पार्ट काउंसलिंग भी है, मिलिंद भाई जो काम कर रहे हैं उस काम का। तो इस तरह के हमको एनजीओ में भी काउंसलर्स वॉलंटरीली या फिर गवर्नमेंट के साथ या यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके जहां जहां से हम लोग काउंसलर्स तैयार कर सकते हैं उनके साथ मिलकर काउंसलर भी करने की जरूरत बहुत बड़े पैमाने पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल वेलबीइंग का कंसेप्ट सिर्फ साधु बाबाओं तक भी है। हमारे वहाँ एक जो जनरल वे में मेंटल वेलबीइंग की अगर हम बात करें तो अगर कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो हम कहते हैं कि कहीं पागल हो गया तो साइकोलॉजी, तो उस परिभाषा से निकल के हमें मेंटल वेलबीइंग के लिए भी लोगों को काउंसलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, और उसके लिए भी उस क्षेत्र में भी एनजीओ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेंटल वेलबीइंग की। तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा मुझे लग रहा है कि हमारे वहाँ एल्डरली केयर का भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो उसको मैं भट्ट साहब की बात को, जो मैन पावर एजेंसीज की बात है, उसमें हम लोग एक एल्डरली केयर का ट्रेनिंग भी लोगों को कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसमें हम लोग एल्डरली केयर के में भी हम मैन पावर रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम कर सकते हैं। तो ये तीन अपॉर्चुनिटी मुझे फिलहाल दिख रही है कि एनजीओ इकोनॉमिक स्लो डाउन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। So we find something from both of you. We need to redefine the whole process of NGO, whole activities of NGO. It's true. Agreed. Yeah. Milind bhai, your good. See, Bharat bhai, I am quite junior to all the panelists. I am the most junior person might be in this panel, with my experience as well as my age also. But I'm thankful to you that you have given us an opportunity to share our thoughts with everybody. I am completely
with both my allied speakers, before speakers, Bhatt sir as well as Dr. Mayur Joshi bhai. बट सर ने जो बात बोली मैन पावर रिसोर्सेज की, मैं उन्हीं पे ऊपर आने वाला हूँ। हमारे एनजीओ बीइंग पेशेंट फाउंडेशन ने अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है। भरत जी आप उसके मुखिया है मेरे साथ। बी सोशल सोल्जर फॉर नेशन फर्स्ट। आज हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें देखा गया है कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी है गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में। जो एक एनजीओ एक ब्रिजिंग का काम कर सकती है, ये कैंपेन के थ्रू बी सोशल सोल्जर फॉर नेशन फर्स्ट, कुछ भी काम करे नेशन के लिए काम करे, ये फीलिंग्स हमें सब में जगाने की जरूरत है। एक एक ग्रेजुएट, एक एक जो स्नातक बोलते हैं हिंदी में उसको एक सोशल सोल्जर बनाने की जरूरत है, ताकि वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को लोगों के सामने उजागर करे। अपने आसपास के जो भी बिछड़े लोग हैं, जो लेस एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, उनको वो पढ़ाई में योगदान दे हर रोज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक श्रम दान और एक जो पढ़ाई का विद्या दान है, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ आज की ये पैनल डिस्कशन में कि इकोनॉमिक स्लोडाउन तो डेफिनेटली पहले था, कोई मना नहीं कर सकता उसको। मोदी जी चाहे लाख बोल ले, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन था। कोरोना ने, जैसे भरत भाई ने बोला, वो उसमें घी डाल दिया है। तो मोदी साहब को एक मुद्दा मिल जाएगा, चलो कोरोना की वजह से हुआ, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन आगे क्या करना है, फिलहाल अभी जो सरकार कर रही है वो प्रिवेंशन का काम है, उसमें हमें सपोर्ट करना है सबसे पहले। लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी स्लोडाउन और होने वाला है, उसमें हमारा क्या दायित्व रहेगा एनजीओ की ओर से। तो हमें ये सोशल सोल्जर की मूवमेंट को हमें आगे ले जाना है। मैं सब पैनलिस्ट को अपनी पीपीटी में बाद में मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, भरत भाई के साथ भी वो पीपीटी मैंने साझा किया है। एक बहुत ही एक बड़ी सोच है जो मेरे हिसाब से अभी तक ये सोच एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, एक्सप्लोर नहीं हुई थी। शायद देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ये सोच को लेके हम आगे बढ़े कि अपने आप को एक सोशल सोल्जर की तरह प्रस्थापित करें। बहुत सारे सोशल सोल्जर्स के एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, वो आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल जो डॉक्टर मयूर जोशी साहब ने बताया कि रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन पॉलिसी, वो भी एक बहुत जरूरी मैटर है। आज एक डिजास्टर एक स्टेप मेरे हिसाब से लिया गया गवर्नमेंट की ओर से कि जो श्रमिक को उन्होंने अभी सिटी में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां से ट्रांसपोर्ट करके अपने अपने गांव भेज दिया। लेकिन जब 15 दिन 20 दिन या 15 दिन 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब जरूरत पड़ेगी वही एम्प्लॉइज की, उसको कैसे मैनेज करेंगे? So here it is a lack of communication system between the government and the society, where I do firmly believe NGO can play a big role to become a bridge between government and the society. Over to you, Bharat. Good. So all three of you, very good. This is what we conclude, or say what we get out of this is we need to redefine the whole system, whole method of working method of NGO. हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा। हमको ये, जैसे भट्ट साहब ने बताया कि हमको CSR मिलने वाला नहीं है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो विदाउट CSR किस तरीके से आगे बढ़ना है? पैसा तो मिलने वाला नहीं है, वो पैसा भी कहीं से लाना है और उसको आगे भी बढ़ाना है। एनजीओ को आगे बढ़ाना है, लोगों को हेल्प हो सके ऐसा भी करना है। तो अगेन भट्ट साहब, एनी स्पेशल कमेंट ऑन इट? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा एक कि अभी जो पहले तो मयूर भाई ने बात बोली, हाउसकीपर की प्रोवाइड करने वाली एक एनजीओ अहमदाबाद में पहला नगर में अच्छा काम कर रही है, एक पर बड़े पैमाने पे नहीं है। हाउस कीपिंग का या तो हाउस मैनेजर्स को प्रोवाइड करने का डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कोई अच्छा एनजीओ नहीं है। 2-4 है पर छोटे बड़े पैमाने पे करते हैं, पर वो ऑर्गेनाइज काम नहीं करते हैं, उनका काम ठीक भी नहीं हुआ है। पर एक चीज है कि इतने सारे लोग हैं, 17-80 लाख के आसपास, तो इनका कोऑर्डिनेशन बड़े पैमाने पे करने की जगह छोटे पैमाने पे हो सकता है। जैसे शुगर फैक्ट्रीज में 1.5 लाख से ज्यादा लेबरर्स आते हैं, उसमें आधे गुजरात के 30-40% और ज्यादातर महाराष्ट्र से आते हैं।
तो वहां भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम हो गई है, मुकदम हो गया है और वो सब कुछ देखता रहता है। और एक दूसरी भी चीज हो गई है कि ये जो भी मेन प्रोवाइडर की काम हो रही है उसमें जीएसटी एक बड़ी समस्या है। दूसरा, इतना ही पैसा वो अपना मुनाफा भी रखेगा एजेंसी, क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग एज एनजीओ, दे आर वर्किंग एज सर्विस प्रोवाइडर, तो वो उनका मुनाफा देखते हैं। तो अल्टीमेटली लेबरर्स को पैसा कम मिलता है, जितना मिलना चाहिए इतना नहीं मिल पा रहा है। एक दूसरी ये बात है कि ये लॉकडाउन की वजह से जो स्लो डाउन हुआ है, अगर ये लेबरर्स को वापस बुलाना है तो हम कुछ भी प्रयत्न कर ले, जब तक उनको नहीं लगेगा कि हम सेफ है, वो वापस नहीं आएंगे। एक सही बात है। दूसरी बात है, इनको जरूरत है आएंगे, नहीं तो दूसरे क्षेत्र में भी चले जाएंगे। और संगठित का मैं तो ग्राम मजदूर कमिश्नर 3 साल रह चुका हूँ, 2004 से 2007 तक। और ऑल कैलेमिटीज में मैंने एनजीओ के साथ मिलके सूरत फ्लड में, उत्तराखंड में, कच्छ अर्थक्वेक में, इवन मैं बताऊं आपको 79 में जब मच्छू डैम टूटा तब मैं वहां गया था। आई वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, तो वहां भी मैंने देखा है। तो इतने जो भी एनजीओ का काम वहां है उसको हम साथ लेकर कर सकते हैं। सरकार ने अर्थक्वेक के बाद तो बढ़िया काम किया था, एनजीओ कैसे रोल प्ले कर सकते हैं वो एक गाइडलाइन भी बनाई थी और इनको इन्वॉल्व भी किया था। अभी आजीविका प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में वो कमेटी में भी मुझे 2-3 बार बुलाया गया था। तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि एक बड़े आदमी ने प्रोजेक्ट बनाया कि पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में मिलेट मतलब बाजरा कैसे उगाया जाए, उसकी ट्रेनिंग हम ट्राइबल्स को देंगे और हम सिर्फ 8-10 करोड़ लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अब मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा। फिर वो मारुति एक प्रोजेक्ट रखा कि हमें 10 करोड़ दे दो, हम ट्राइबल से या रूरल एरिया में से लोगों को ड्राइविंग सिखाएंगे और अच्छे ड्राइवर गुजरात में मिलेंगे। तो मैं उस पर भी ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। सेवा ने भी एक प्रोजेक्ट किया था असफॉल्ट वर्कर्स का आजीविका के तहत, इस तरह से। पर आजीविका प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पे अच्छा नहीं हो पाया है, ऐसा ये मेरी समझ है। पर इस स्लोडाउन के हिसाब से अगर रूरल लेबरर्स को, माइग्रेंट लेबरर्स को हमें अट्रैक्ट करना है तो कुछ पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, सरकार को बनानी चाहिए। सरकार में भी बहुत अच्छे लोग बैठे हैं तो भी बनाएंगे भी सही। मैं पिछले 15 दिन से कम 80 एनजीओ के साथ बात कर चुका हूँ और इससे वो लेबरर्स को खाना मिले, रेशन मिले, उसके लिए ही। आप मेरी फेसबुक पोस्ट पर भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। और जहां लगा तक सीनियर मोस्ट लेवल तक मैंने रिक्वेस्ट भी की है, या धमकी बोलो तो वो भी दिया है, पर अच्छा मैनेज हुआ है। आज 98% तक तो हो भी चुका है। पर उनका कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं है। ग्राम मजदूर कमिश्नर के पास सिस्टम बनाने की बात थी 10-12 साल पहले, तब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाई। फिर वो लेबर कमिश्नर को दिया गया, फिर वहां से भी एक प्रपोजल हुआ, वो भी आखिर नहीं हुआ। अल्टीमेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत काम करने की जरूरत हमारे लिए है। हम काम नहीं कर पाएंगे इनके बिना। ये जो फिजिकल वर्क करते हैं, गन्ने के खेत में करेंगे या वो फैक्ट्रीज में जाके करेंगे, या फिर वो कंडला में, अलंग में जाके करेंगे, हर जगह करते हैं और वो चेंज भी करते रहते हैं। पहले एक चीज चली थी उत्तर गुजरात में, कॉटन में, वो कपास की एक वेरायटी आई थी शंकरचार, तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे राजस्थान से मजदूर आने लगे थे। आज आते हैं, बहुत कम आते, पर सालों तक बहुत मजदूर आए, पर उनका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कुछ बड़ा नहीं है। एक बात चीज है कि वहां ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। गुजरात सेफ है इसलिए आते हैं, और गुजरात में कम से कम उनको रहने की, खाने की ठीक सुविधा होती है और थोड़ा पैसा बचाकर वो ले जा सकते हैं, इसलिए आते हैं। उनका भी काम हो जाता है, पर बड़े पैमाने पे उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए एक सिस्टम ठीक से काम करे, वो जरूरत तो है। तब वो स्लो डाउन वाली अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करने में, आगे लाने में हम मदद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। थैंक यू। मयूर भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये एक्चुअली भट्ट साहब की बात को मैं अभी मैंने परसों ही एक पत्र लिखा है कि जिसमें मुझे लग रहा है कि अब एक नेशनल माइग्रेंट पोर्टल बनाने की जरूरत है।
हर स्टेट के जीआईडीसी को, यानी जो जीआईडीसी है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उसके वहाँ जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ पे पहले तो कोई भी मजदूर बाहर से आता है तो कहाँ से आया है, क्या आ रहा है, वो उसको एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये करना चाहिए। शायद सरकार ने कल कुछ ऐसा डिक्लेयर भी किया है कि वो पोर्टल बनाएगी, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मैंने कहीं मुझे किसी ने बोला। तो मेरा सुझाव था कि एक नेशनल पोर्टल बनाया जाए। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम गांधीनगर रहते हैं तो भट्ट साहब तो गांधीनगर से पूरी तरह अवगत है, तो जैसे गांधीनगर के बगल में ही एक पिथापुर नाम का विलेज है कि जहाँ पे पहले बहुत अच्छे लोग शूज बनाया करते थे, या फिर डाइंग के लिए जो बीबा बनते हैं, बीबा बोलते हैं हम लोग जिनको गुजराती में, वो उस तरह का बनाते हैं। तो हमें उस तरह के क्लस्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीजें हैं जहाँ पे वो वहाँ लोकल लोगों को हम ट्रेनिंग देके उस तरह का काम कर सकें। दूसरा मैं हमेशा बहुत एम्फेसाइज करता हूँ दो मॉडल्स को, एक अरविंद आश्रम का पुडुचेरी मॉडल और दूसरा ये गोवर्धन विलेज जो इस्कॉन वालों ने बनाया है। मैं वो दोनों चीजों को क्लब करके हमेशा मैं कहता हूँ कि क्लस्टर बनाना चाहिए, जो एक 10 गांव का क्लस्टर बने कि जहाँ से लोकल जरूरत की जो चीजें है उसी गांव में से हम लोग परचेज कर पाए। छोटी छोटी चीजें जो हमारे डेली यूज में आती है, जैसे अगरबत्ती से लेके साबुन से लेके माचिस की तिल्ली से, ऐसे जो रेगुलर घर में वो हमारे लोकली परचेज हो, वो अच्छा है, लोकली परचेज हो। तो एक ये भी करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि जो भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें वीमेंस का रोल मैक्सिमम है, पर हम उसके ऊपर कुछ भी एम्फेसाइज नहीं करते। हम लोग जो भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं वो मेंस के लिए, मेंस फार्मर के लिए कर रहे हैं, उसकी जगह हमको वीमेंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। तीसरा मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ दूध का प्रोडक्शन जितना होता है उसके सामने, जितनी खपत है उसके सामने प्रोडक्शन शायद कम हो रहा है आजकल, क्योंकि हमारे वहाँ ज्यादा एक्सपोर्ट चॉकलेट्स वगैरह में आजकल पनीर है उस तरह में हो रहा है। तो हमें महिलाओं को उसके लिए भी इकोनॉमिक स्लो डाउन में प्रोत्साहित करना चाहिए, कि जिसके लिए हमें पूरा एक नेशनल कैटल पॉलिसी जैसा कुछ बनाना चाहिए, जिसकी वजह से महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। क्योंकि आज के जमाने में जो पुराने जनरेशन की महिला, हमारे जनरेशन या हमारे आगे की जनरेशन की जो महिला है, हमारी माँ दादी वगैरह, उस तरह की महिला ही पशुपालन का काम करती है। आजकल की लड़कियां पशुपालन करना प्रीफर नहीं करती है, तो उसकी जगह उनको भी मोटिवेट किया जाए। एक भट्ट साहब के मित्र और मेरे ताऊ जी आज ही बता रहे थे, वो 4 सेक्टर में रहते हैं और वहां पे जो आज अगल बगल के गांव से जो लोग बच्चे पढ़ाने आए थे, मैक्सिमम दैट इज पटेल और चौधरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज्यादातर लोग अपने घरों पे गांव में वापस चले गए हैं और वो महिलाएं केटल फार्मिंग करना पसंद नहीं करती। तो जो मूलतः जो महिलाएं केटल फार्मिंग जो लोग करते थे, उस तरह के महिलाओं को भी केटल फार्मिंग के लिए हेल्प करनी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह देके। और उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उससे हम लोग क्या, जैसे एक्सेल इंडस्ट्री है गौमूत्र लेती है, उस तरह के जो हम लोग वेस्टेज में निकाल देते हैं, उस तरह के बाई प्रोडक्ट्स को भी हम लोग रूरल बेस्ड इकोनॉमी के लिए, शायद मुझे लग रहा है कि अब पोस्ट कोविड इकोनॉमी स्लो डाउन को इम्पैक्ट तभी आ सकता है जब हम रूरल इकोनॉमी को ज्यादातर बूस्ट करेंगे, उसमें ही हमें एम्फेसाइज करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरा, जब भी हम नेशनल पोर्टल की बात करते हैं कि माइग्रेंट वर्कर का नेशनल पोर्टल हो, तो उसमें सिर्फ एजुकेशन से लेके हर तरह की चीजें आए, तो जिसकी वजह से हमें पूरे भारत का डेटाबेस रहेगा, कौन से स्टेट से कितने लोग माइग्रेंट होके कौन से स्टेट में जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग प्रदेश में देखते हैं कि पासपोर्ट आधारित सिस्टम होती है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड है, हमारा आधार कार्ड से हम लोग ये माइग्रेशन बेस्ड सिस्टम कर सकते हैं और उसमें गांव के तलाटी का और सरपंच का रोल ज्यादा अहम रहेगा। या गांव में अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं तो वहां से हम कर सके, पर उससे बहुत इजी है, मुझे लग रहा है कि ऐप के माध्यम से हो जाए तो माइग्रेंट वर्कर का जो अगर माइग्रेशन हो रहा है वो उसके जीपीएस के साथ जोड़ के, उसका सीधा आधार के साथ उसका जीपीएस लिंक करके भी हो सकता है उसके मोबाइल का, ये मुझे लग रहा है। थैंक यू। बट साहब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो शायद उसमें कुछ रोशनी डाल सके। गूगल में प्लीज, गूगल में फैसिलिटी है, कोई ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। तो ड्राइव और जो डॉक्स है ना, उसमें सर्वे फॉर्म भी है, उसमें आप हजारों लोगों का काम करवा सकते हैं, मिल सकता है। Any question from anybody? Immediate 1 or 2 questions.
में बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर मयूर ने जो बताया ये हेलो। तो हेलो, हाँ जी। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जो मयूर ने जो बताया कि आइसोलेटेड होना चाहिए विलेज में, ये रूरल डेवलपमेंट जब करेंगे तभी ये स्लो डाउन इकोनॉमी का सॉल्यूशन आएगा। उसका मेरे पास एक सुझाव ये है कि जैसे ये मास्क बनाना ये गवर्नमेंट ने अभी पहनना कंपलसरी किया है। पोस्ट कोरोना-19 की सिचुएशन वर्ल्ड वाइड देखा जाए, हांगकांग में है तो मास्क कंपलसरी है, तो ऐसे ही हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके मास्क कंपलसरी और उसी का मैन्युफैक्चरिंग अगर हम विलेज में महिलाओं से कराएं तो महिलाओं को कुछ टेलरिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, बेसिक टेलरिंग तो उनको आती है, मास्क बना सकती है, वो सैनिटरी पैड्स बना सकती है और वहां से हम उत्पन्न कर सकते हैं। एक मेरा ये सुझाव ये भी था कि रूरल डेवलपमेंट में अगर इसको हम डालें ये मैटर को, तो आप सबका क्या ओपिनियन रहेगा? तुम लोग कालिया के पास जाओ और what he says is जो रूरल डेवलपमेंट और पोस्ट कोविड उसमें हम एनजीओ जो नया प्रॉब्लम हो रहा है उसमें जैसे मास्क और उसका वो यूज ज्यादा रहेगा, तो उसमें हम जो एनजीओ के थ्रू उसका प्रोडक्शन बढ़ाए और उसको आगे बढ़ाए, तो हाउ यू फील? एक्चुअली हम लोग मास प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें मास प्रोडक्शन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है। हर चीज को अगर प्रोडक्शन का कोई इश्यू नहीं, पर एक सबसे बड़ा इश्यू है उसका मार्केटिंग का। क्या गवर्नमेंट से या कहीं से उस जो भी मास प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका कंफर्म ऑर्डर उस एनजीओ को मिल रहा है, या फिर हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट हो जो इस तरह का प्रोडक्शन करवा। आई सजेस्ट हमारा कोई एनजीओ के थ्रू ही हम ऐसा कोई सी we always we try to interfere government. We are non government organization and अगर हम गवर्नमेंट को छोड़ के ऐसा हमारा ही कोई एक अच्छा सिस्टम बनाए जिसमें हम ऐसा कुछ काम कर सके, that is what I feel. But sir, anything immediate? We have 1 or 2 minutes. हाँ, एक कच्छ में अर्थक्वेक के बाद प्रोजेक्ट हुआ था, उस अभियान संस्था ने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और सभी एनजीओ को कोऑर्डिनेट करके उनकी हर मंथली मैगजीन निकलती थी, हर 3 मंथ की रिपोर्ट तैयार करते थे और कौन से गांव में, कौन से एरिया में कौन सा एनजीओ क्या काम कर रहा है उसका पूरा कोऑर्डिनेशन वहां हो पाया था। ऐसी एक अच्छा काम केरला में हो रहा है, कदम कैसा कुछ नाम है, मैं 2009 में देखने भी गया था, बढ़िया तरीके से। पर इनको सरकार के ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं, केरला में महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार भी है और उनको सरकार का सपोर्ट भी ज्यादा रहा है। हमारे यहाँ भी हो सकता है, करना चाहिए, पर ये कर सकते हैं 2-4 वेब सेमिनार के बाद हम लेबर कमिश्नर, लेबर सेक्रेटरी, लेबर मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके बात कर सकते हैं। कोई नई पॉलिसी अगर सीएम साहब बना ले जो बहुत जरूरी भी है, तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए भी होगा, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, काम भी मिलेगा, माइग्रेशन कम होगा, मैं समझता हूँ। मयूर भाई, एनी इमीडिएट रिएक्शन? वो मैं भट्ट साहब की बात से सहमत हूँ, कदम का काम बहुत अच्छा हो रहा है। अगर हम उस कदम के मॉडल को भी अगर हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं उसमें कुछ मॉडिफाई करके, तो इमीडिएट इफेक्ट से हमको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं अभी भी वापस वही बात को भट्ट साहब की बात से सहमत होकर दोहराऊंगा कि क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स को सरकार को और एनजीओ को साथ मिलके अच्छी तरह, और कॉर्पोरेट को, और मैं उसमें एक और आयाम जोड़ना चाहूंगा, मैं उसमें यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ना चाहूंगा कि चारों को मिलके कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाके ये काम करने की ज्यादा जरूरत है। It's very good. Thank you everybody. Any special comment at the end? फिर से हम मिलते हैं, अगले सप्ताह का एक पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में जो हमारे 2-3 प्रोग्राम गए उसमें भी सबने बोला कि नहीं, ये अगेन हर एक का एक दूसरा सेशन होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एनजीओ सेशन?
required any that आज is second अच्छा session. जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, 3 एनजीओ जुड़ नहीं पाए, तो मेरे हिसाब से एक और सेशन बनना Yeah, चाहिए। yeah. बट सब मैंने भी हमें मोरोवर भट्ट साहब को सुनने का मौका मिल रहा है हमको। भट्ट साहब का नॉलेज बहुत अच्छा है, अभी बहुत कम मिला है। तो आई थिंक वन स्पेशल सेशन स्पेशली फॉर भट्ट साहब, मैं आज उनको फोन करने वाला हूँ कि हम कुछ एक अकेला मेरा और उनका सेशन रहेगा, आप सबको सुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैं भट्ट साहब के साथ बैठ रहा हूँ। आज अजय सिंह राइट भट्ट साहब? वो